السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں لے آئی ہوں 6 ایپیسوڈ بہت شاکنگ اور بہت زیادہ ہلا دینے والی تو ناول وہ عشق جو ممنوع نہ رہا، رائٹر ہے اسمروا مرزا ناولز۔ تو بنا کوئی ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ ڈنر کے دوران بھی ایمان نے زیادہ تر اپنی آنکھیں اور توجہ اپنی پلیٹ پر مرکوز رکھی، جس چیز سے باکو اکثر ہمارا مقدر ہمیں اسی کے روبرو لا کھڑا کرتا ہے۔ جیسے اس وقت ساحر ٹھیک ڈائننگ کے اس پار اپنی پرسحر شخصیت کے آسیب بکھیرتا پورے روب کے سنگ بلا کو مطمئن ہوئے براجمان تھا، جس کی تمام تر توجہ بابا اور زیان انکل کی جانب تھی۔ لیکن اتنے فاصلے کے باوجود ایمان کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی، جسے اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہیں، ساحر نے بخوبی پاؤں پر دوسری آنکھ ان دو کے بیچ کی کشش کو آبزرو کرنے والی انان ابراہیم کی تھی، تنفر بری، جس کا بس نہ چلا ایمان کو اس شخص کی نظروں سے کہیں دور کر کے رکھ دے۔ خیر اللہ اللہ کر کے ڈنر مکمل ہوا تو سب لیڈیز ایک روم میں جا کر چائے پینے گپ شپ کرنے جمع ہوئی۔ لیزا ہادی بھی وہیں تھے تو جہان جبران کو بھی زیان سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ دونوں لان میں چہل قدمی کے ہمراہ اپنا اپنا چائے کا کپ تھامے ٹھنڈی پرکیف سی ہوا میں مسرور ہوئے واک کر رہے تھے، جبکہ ساحر کھانے کے بعد کچھ دیر ٹیرس پر چلا گیا اور نان نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے قدم چھت کی طرف بڑھائے، جبکہ آئس کو ایک ضروری کال آ گئی، جس کی وجہ سے وہ سب سے اجازت لیے گھر کے لیے نکل گیا۔ کیا تم لوگوں کا عہدہ اور آئس کی رخصتی کے بعد ایمان اور انان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ ہے؟ جہان نے نہ کوئی تمہید باندھی نہ زیان کو اپنی بات کے لیے تیار کیا، سیدھا سوال پوچھ لیا۔ وہ لمحہ بھر ڈٹ گئے۔ زیان عالم کے قدم تھمے ہونٹوں پر حیرت سے بری مسکراہٹ رقص کی۔ تو نے یہ کیسے سوچا یار؟ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، میرے ذہن میں بھی ایسا کبھی نہیں آیا۔ زیان کا جواب خوشائند ثابت ہوا، جس سے جہان کو ہمت سی ملی کہ وہ اگلی بات کرتے۔ سچ میں اگر تم لوگوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تو ایمان ہمیں دے دے میرے ساحر کے لیے۔ یہ سب جہان کے منہ سے اتنا اچانک سنے، لمحہ بھر زیان کچھ بول ہی نہ سکے۔ عجیب سی خوشی کا لمحہ تھا، کچھ بولنا مشکل ہوا، گویا دل کی بات جہان ہاں نے مہارت سے اچک لی تھی۔ کیا ساحر کے لیے ایمان؟ زیان کی خوشگوار حیرت پر جہان نے کپ وہیں لان میں لگی میز پر جھک کر رکھا اور واپس سیدھے ہو کر اپنے یار کے روبرو ہوئے۔ بے قراری ہر منہ سے چھلکی، جیسے انکار سننے کی سکت نہ ہو۔ ہاں میرے ساحر کے لیے ایمان ہمیں دے دے، مجھے اور منیرا کو بہت پسند ہے، بلکہ بچپن سے ہم دونوں اس لیے محتاط ہو کر چپ تھے، کہیں تو نے اور ریشا بابی نے ایمان کو لے کر انان کو نہ سوچ رکھا ہو، انان کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ بس یہی سوچتا رہا۔ وہ پہلے ہی ابراہیم کی موت پر بہت متاثر ہوا تھا، کچھ اور پیارا چھن جاتا تو زیادتی ہوتی۔ اب تو نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، تو اب ایمان صرف میرے ساحر کی ہے، وعدہ کر۔ جہان تو منوا کر دم لینے والے تھے، ان کا اصرار تو کبھی زیان نے مذاق میں رد نہ کیا، اور یہ تو ان کی باولی سی ایمان کی زندگی بھر کے سکون اور خوشی کی ضمانت سے بھرپور فیصلہ تھا۔ باقی انہیں انان کے کسی قسم کے رویے سے آج تک ایمان کے لیے دوستی کے علاوہ کچھ محسوس ہی نہ ہوا۔ یار اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تجھ سے کیا چھپاتا، نہ تو انان اور ایمان میں دوستی کے علاوہ کچھ ہے، نہ روحا بابی نے کبھی ایسی خواہش کا اظہار کیا۔ میری تقویر کو ساحر جیسا سمجھدار، شریف اور اچھا ساتھی ملے، اس سے بڑھ کر اور میرے لیے شاید ہی کوئی خوشی باقی ہے۔ سمجھ، آج سے ایمان میری نہیں تیری بیٹی ہے۔ زیان کے پرخلوص رویے اور فوری پہلے ہاتھ میں مراد کی صورت ایمان رکھ دینے پر جہان جذب سے زیان کے گلے لگے، گویا یہ آج کے دن کا سب سے پرسکون لمحہ تھا۔ تو نے میرا دل جیت لیا زیان، ہمیشہ میرے پہلے ہاتھ کو بھر دیتا ہے، تو تیرے جیسا یار اس پوری دنیا میں نہیں۔ ہم کچھ دنوں تک باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے، تب تک تو گھر بات کر لینا، ایمان کی رضامندی سب سے اہم ہوگی، اور وہ تو مجھے پہلے پتہ کر کے بتانا کہ ہم لوگ صرف ہاں لینے آئیں گے۔ گویا ان دو یاروں نے تو ساحر اور ایمان کی زندگی کا رخ ایک دوسرے کی سمت کر دیا، مگر ابھی ایسا کچھ بھی سازگار نہ تھا، یہ سب اتنا آسان ہو ایسا ممکن نہ تھا۔ دوسری جانب دھوئیں کے مرغولے میں انان کو ساحر جبران کے مقابل دکھائی دیتا آسمان مل کے جی لگا۔ ساحر ٹیرس پر کھڑا دیوار پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے میں سگریٹ دبائے اپنے دھیان میں کھڑا کچھ الجھی بکھری سوچیں سنوار رہا تھا، جب عقب سے کینہ توز سی پکارنے سے پلٹنے پر مجبور کیا۔ 4 سال پہلے تمہیں تنبیہ کی تھی ساحر جبران کی تقویر ایمان سے کوسوں دور رہنا، مجھے خوشی ہے تم نے اپنی خوشی پر اس کی زندگی کو اہمیت دی اور 4 سال ہمارے بیچ کا معاہدہ ایمانداری سے نبھایا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں تم اس کے سامنے بھی مت آؤ۔ انان کے لفظوں کا زہر 4 سال پہلے تو ساحر نے برداشت کر لیا، لیکن اب بات کچھ اور تھی۔ جلا سگریٹ زمین پر سرد مہری سے پھینکے پیر کے بوٹ سے اسے مسل کر ساحر پلٹا، چہرے پر کسی قسم کی تلخی نہ تھی، بس انان ابراہیم کے دیے اس مضحکہ خیز حکم پر ساحر کو ہنسی آئی، لمحہ لگا اور ساحر کے چہرے کے حال مقابل کی اکڑ پر تن گئے۔ کیا تم میرے مالک ہو انان ابراہیم؟ مجھے حکم دینے کی جرت بھی کیسے کی تم نے؟ مجھے 4 سال پہلے بھی تم پر ترس آیا تھا، مگر آج ہنسی آ رہی ہے۔ تب ابراہیم انکل کی موت کے لحاظ میں تمہاری بکواس اور بے سروپا لا یعنی دھمکیاں سن لی تھیں، تمہاری ماں نے تمہاری ابتر حالت کے تحت ہی تمہیں زیان عالم کو کہہ کر زبردستی تھائی لینڈ اسپیشلائزیشن کے لیے بھیجا، کیونکہ وہ جان گئی تھی تم
ऐसी अबतर हालत में हो कि किसी की जान ले बैठोगे। मुझे फ़िक्र हुई थी तब तुम्हारी और रोहा साहिबा के फ़ैसले पर खुशी कि चलो तुम मसरूफ़ होकर कुछ बेहतरी की तरफ गामज़न होगे, लेकिन लगता है 4 साल गारत कर आए हो। तुम्हें तब भी मशवरा दिया था कि दिमाग का डॉक्टर बनने के बजाय किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना मुआयना करवाओ। साहिर की सपाट गुफ्तगू, अनान का चेहरा सफ़ेद पड़ा, हकारत सी आंखों में छलकी जैसे अनान उसके जिस्म में गर्दिश करते आखिरी लहू तक का प्यासा हो। बकवास मत करो। अनान के जिस्म का गर्दिश करता हूँ साहिर की तस्दीक पर उबला। बकवास मैं नहीं कर रहा। 4 साल पहले तुमने मेरे ऑफिस आकर की थी अनान इब्राहिम। मेरे तो वहमो गुमान में भी वो सब न था जिसे बहतान और इल्ज़ाम बनाकर तुम मुझ पर थोप गए थे कि मैं ईमान को ईमान में इंटरेस्टेड हूँ, वो भी जिस तरह तुमने वो सब कहा बहुत गलीज़ अल्फाज और टोन थी। कहा कि मैं इसको नुकसान दूंगा, तुमसे छीन लूँगा। इतने इनसिक्योर थे तुम और आज भी तुम बकवास ही किए जा रहे हो। साहिर की कन पट्टी की रगे अनान को देखकर ही तन जाती, गोया से अनान पर सालों का गुस्सा था। अच्छा तो क्यों वो तुमसे बात करते घबराती थी हमेशा, किसी से ना डरने वाली ईमान तुमसे हमेशा क्यों दबी रही? ऐसी कौन सी गंदी नज़र डालते हो इस पर? मुझे तुम्हारी सारी खबर थी कि तुमने कैसे खुद को पिछले 4 साल से अपने पैशन में मसरूफ़ रखा हुआ है, लेकिन तुमने अपने डैड को यहाँ साथ तक घर लेने से रोका क्यों नहीं? मुझे इस पर तुम्हारी नज़र बर्दाश्त नहीं है। वो सिर्फ मेरी दोस्त है और बीवी भी मेरी बनेगी। इनान की ये सब आउट ऑफ लाइन बातें साहिर जिब्रान अगर बर्दाश्त कर रहा था तो ईमान के लिए, अगर इसे इनान की जहनी अबतरी की खबर होती तो न जाने बेचारी को कितना बड़ा धचका लगता। मैंने तुम्हारी बात मानी थी, उसको तुम्हारे आगे बेचा नहीं है। मुझे ईमान का सुकून इतना ही अजीज है जितना अपनी बहन अशबा का। तुम्हारी उत्साहता सोच का इसके दिमाग पर 4 साल पहले गंदा असर ना पड़े, तभी तुम्हें यकीन दिलाया था कि मैं तुम दो के बीच कहीं नहीं हूँ। तुम जैसे सर फिरे से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मैंने खुद को हर जगह से समेट दिया सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे अलावा किसी का जीना दोबर ना करो। मेरे और ईमान में ना कभी पहले कुछ था ना अब है। अपने दिमाग से ये हन्नास निकाल दो। और हाँ, एक बार इससे भी लाजमी पूछना कि क्या वो तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुमसे बात करना चाहेगी? तुम्हें मेरी सब खबर थी अनान इब्राहिम। मैंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तुम्हारे 4 साल बंद किताब की तरह मौजूद है मेरे पास। अगर तुमने मज़ीद मुझे और ईमान को अपनी जहरीली सोचों में शामिल किया तो वो किताब ऐसी खुलेगी कि हर सो हम तक उसके किस्से पहुंच जाएंगे। दोबारा मेरी राह में मत आना। ऐसा ना हो साहिर जिब्रान का जब टूटे और वाकई तुमसे तकवीर ईमान छीन ले और तुम हाथ मलते रह जाओ। साहिर ने उसकी नफरत से भरी आंखों में दुगनी नाराज़गी और गेज़ के संग झांका और अपने अल्फाज की सख्त संगीनी और सख्ती से नान को उसकी जगह बताता मज़ीद कुछ कहे पास से गुजरता नीचे चला गया कि अन्नान ने ज़ब्त के संग एक बार फिर मुठियाँ भींच ली। बस ना चला इस आदमी का चलता दिल रोक दे। उसकी जुर्रत ने अन्नान को सर से लेकर पैर तक जलाकर खाकसर कर दिया। चाय आलम हाउस के सब मकीन डिनर से वापस आते ही अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे, जबकि एदाबी किचन में पानी पीने आई तो मुलाजमों को चाय चूल्हे पर रखता देखकर इसने दरियाफ्त किया चाय इसके लिए बना रही थी। सो इसे मना किए सोने बेचकर एदा उसकी चाय खुद बनाकर लान में लाई, जो किसी फॉरेन कंपनी के सीईओ से काफ़ी देर से फ़ोन पर डिस्कशन में मसरूफ़ था। आयस ने एदा से चाय का मग बिना इसे देखते लिया और फ़ोन ऑफ करते सामने मेज़ पर रख दिया। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे आयस। अपने हाथों को नर्वसनेस के तहत मरोड़े वो बैठे आयस से काफ़ी मुनासिब फासले पर नज़रें झुकाए हल्कान और बेजान खड़ी थी। कहो सुन रहा हूँ। खुद को नाराज़ अयां किए फ़ोन को बेवजह स्क्रॉल किया और एदा के अंदर जो हिम्मत थी वो भी बुझ कर रह गई। तवज्जो से नहीं सुनेंगे एदा के तासब भरे जुमले जो इसने सरगोशी की सूरत अदा किया आयस को नज़र एदा पर डालने पर मजबूर कर गया। वो नज़र जिगर पर हंजर की तरह पेवस्त हुई जिसने एदा के हौसले का लम्हे में खून किया। मेरी तवज्जो तुम्हारी जान पर न बनाए, लिहाजा यूं ही बता तो बेहतर है। बहुत गुस्सा हूँ तुम पर, मजीद मत सताओ एदा। आइस की हफ्की के सबब एदा जो कहने आई सब भूल गया। याद रही तो बस उसकी नाराज़ आंखें। अगर वो इस वक्त इसे बताती तो वो जाने से इसे खुद से दूर करने में सोचने की ज़रूरत भी महसूस करता या नहीं। बस तभी एदा हल्क में बढ़ती अजियत के फैलाव पर कुछ ना बता सकी और फिर आइस को आती ऑफिशियल कॉल ने भी इन दो के बीच तकलीफ का जहान खड़ा कर दिया। कुछ नहीं आइस जब बाहर आंखों में किरचियाँ सी समेटे एदा ने ना सिर्फ पलटी बल्कि बिना आइस को देखती तेजी से घर की तरफ चली गई। जबकि काल अहम थी तभी आयस इस लड़की की इस दर्जा इरिटेटिंग हरकत पर कोई रद्दमल भी न दे सका। वहीं जहान ने जब अपनी और जहान की गुफ्तगू के बारे रात मनीरा को बताया तो उनकी खुशी छुपाए न छुप सकी। सोने से पहले वो साहिर की इस खुशी के लिए शुक्राने के नफल अदा करने बढ़ गईं जिसे मुद्दत से नज़रें बद लगी हुई थी। ये रात एदा की कैसे कटी सिर्फ वो जानती थी या उसका अल्लाह। रात तो अनान की भी कांटों पर गुजरी और तकवीर की बेचैन। फिर सुबह यूनी भी एदा जल्दी जाने का बहाना करती बाबा के साथ चली गई। आयस बहुत जबर से गुजर रहा था लेकिन उसके पास फिलहाल एहतजाज का हक ना था। अनान भी सुबह ही न जाने कहाँ निकल गया। शायद जो आईना साहिर ने इसे दिखाया इसमें अपनी बदसूरत उभरती शक्ल हज़म करने को आज का पूरा दिन इसे तबाह करना था। वीरानों का रुख करते हुए खुद के हाथों सरजद हुए गुनाहों का मातम करते हुए वहीं एक खूबसूरत सी सुबह के वक्त नीलगुं आसमान पर कहीं कहीं सफ़ेद बादलों के मरगोले दिखाई दे रहे थे। फर्स्ट क्लास में टेस्ट देने के बाद ईमान और अशबा बाहर गार्डन एरिया में वॉक करती हुई अंदर जा रही थी। कल तू भाग निकली तो अब कहाँ बता, अब कहाँ जाएगी? बताना तकवीर, तू भैया से इतना हार क्यों खाती है? यहाँ देख। अशबा ने कंधे पर लटकाया बैग वहीं नीचे घास पर रखे ईमान को पकड़ कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। यार वो डिसेंट
मैं उनके सामने बोंगियाँ मारने से गुरेज़ करती हूँ। बस तुझे ही मेरा हार खाना लगता है तो लगता रहे, मुझे क्या। ईमान ने बेनियाज़ी का मुज़ाहिरा किए कंधे उचकाए गोया अशफाक को जान से उतारा। अशफाक को कुछ और कहने की मोहलत न मिली क्योंकि प्रिंसिपल सुल्ताना की खास मुलाज़मा फ़ाहिरा बुआ दोनों की तरफ आकर रुक चुकी थी। एक अचरती निगाह सर तक पैर दोनों शहज़ादियों पर डाली। तुम दो अच्छा हुआ साथ मिल गई। प्रिंसिपल ने बुलाया है दोनों को, चलो। फाहरा ने नहूत से दोनों को इतला दी और चलती बनी। हैं, प्रिंसिपल ने क्यों बुला लिया अब यार? अशफा ने अपना दिल थामा। रंग तो ईमान के चेहरे के भी अनहोनी के खौफ के सबब उड़े। यार कहीं यासर सर ने हमारे मैथ के टेस्ट प्रिंसिपल को तो नहीं दिखा दिए? ईमान की आवाज़ सदमे से फटी। मर गए ईमान। अशफाक अपना सर चकराया, सूखते हलक को थूक निकलते तर करते दोनों ने एक दूसरे को सहम कर देखा। चल आयतुल कुर्सी फूंक कर चलते हैं, हैर होगी। ईमान ने हिम्मत की अपना बैग उठाया, अशफाक को उसका थमाया और डरते डरते प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ी। उनके ऑफिस के रूम के बाहर दोनों का एक बार दिल कांपा, लेकिन हिम्मत करती पहले ईमान ही अंदर गई और आगे अरीशा और मनीरा को देखकर दोनों की थोड़ी थोड़ी रूह सी दहली। सुल्ताना साहिबा ने दोनों की अम्माओं को पीटीएम से पहले ही बुला लिया था ताकि दोनों दो शहजाओं के आस्कर के मुस्तहिक हिसाबी कारनामे दिखा सकें। ईमान और अशफा यूं थी जैसे काटो तो लहू न बचा हो। ऊपर से रीशा और मनीरा की सख्त तंबीही नजरें दोनों की टांगों में कपकपाहट ले आईं। देख लें आप इन दो के फाइनल ग्रैंड टेस्ट का हाल। मुझे यासर ने इनके टेस्ट दिखाए, मेरा तो पारा चढ़ गया। अब क्या इन दो के एडमिशन टेस्ट को देखते भेजूँ? मेरा तो दिल खराब कर दिया इन दो की शरारतों और नालायकी ने। आप दोनों प्लीज़ इन पर तवज्जो दें वरना नताइज के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। दोनों एक जैसी हैं माशाल्लाह। 50 में से दोनों ने 12-12 नंबर लिए। सुल्ताना का सख्त मूड खराब था जबकि ईमान और अशफा साहिबा खड़ी खड़ी लग रहा था वफात पा गई। मैम 12-12 मिलाकर 24 बन जाते हैं। सर ने ज़्यादती की, हम दो जिन जान हैं तो इसी का एहसास करके पास कर देते। ईमान को ही रहम की दरख्वास्त सूझी जबकि प्रिंसिपल साहिबा ने जिस दिक्कत से गुस्से से उसकी बात जब्त की उनकी बसूरी शक्ल से बखूबी आया था। अरीशा का दिल चाह खींच कर ईमान को सेके। शर्म नहीं आती? तुम दो को दरख्त पर चढ़वा लो, दिन रात ठुसवा लो, लेकिन पढ़ाई के वक्त मौत पड़ जाती है दोनों को। तुम तो घर चलो, तुम्हारी तबीयत मैं साफ़ करती हूँ, जिन जान की बच्ची। अरीशा के ताक की हल्की सी झलक पर ही इशबा को तकवीर की कही बात याद आई जबकि मनीरा भले डांटती नहीं थी लेकिन अशफा ने उन्हें बहुत मायूस किया। उनकी उदास सूरत से वाज़िया था, हम इन दो को समझाएंगे सुल्ताना मैम, प्लीज़ थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दें। ये अब से ठीक से पढ़ेंगी, प्रॉमिस करो। शाबाश दोनों। मनीरा ने नरमी से ही मामला समेटा जिस पर दोनों को शराफत से सर हिलाना ही मुनासिब लगा। प्लीज़ फाइनल्स करीब हैं, मैं इन दो को आखिरी मौका दे रही हूँ, वो भी आप दो मोअज़्ज़ज़ लेडीज़ के लिए। अब अगर ये दोबारा टेस्ट में फ़ेल हुई तो मैं इनका एडमिशन रुकवा दूँगी। फिर जब प्राइवेट कैंडिडेट का धब्बा लगेगा डिग्री पर फिर इनको समझ आएगी इस वक्त की कदर। सुल्ताना का गुस्सा किसी तरह दोनों ने कम किया लेकिन पूरा वापसी का रास्ता दोनों की जो अलग लेवल की क्लास हुई इस पर तो दोनों का दिल किया चलती गाड़ी से कूद जाए। ईमान का तो दिल शीशे से सर मारने का कर रहा था। अभी तो ये शुरुआत थी, असल पार्टी तो अब शुरू होनी थी जब दोनों मिस्कीन बेचारियों को उठते बैठते नालायकी के ताने मिलते। ईमान को ज़रा सी बेइज्जती के बाद ही दुनिया बुरी लगने लगी तो सबको छोड़ छाड़ कर वो घर से निकल गई। क्या कर रही है ईमान? मम्मी की क्लास, एदा पिया की नसीहतों का पंडाल और कल के टिड्डे टिड्डी के फेल होने पर दिल में साड़ डालती हंसी सब बर्दाश्त करते ईमान दिल बर्दाश्ता सी लान में लगे झूले पर आ बैठी। दिल रोने का किया या किसी को ठोकने का, पर सुबह से इसका पर्सनल लंगूर भी तो गायब था। अशफा की कॉल और सवाल पर दिल चाहा ऐसा सड़ा जवाब दे कि मुकाबिल की कान तक सुलग जाए। मैं सबसे जूतियों के हार पाकर जश्न में डिस्को कर रही हूँ। ईमान के जवाब पर किचन काउंटर पर स्पैगेटी का सामान रेडी करती। अशफा की हंसी छूटी तकवीर का और मूड बिगड़ा। कोई नहीं, इन हारों को पैर की धूल समझकर उड़ा दे मेरी जान, आजा मेरी तरफ, तुझे मज़ेदार स्पैगेटी खिलाती हूँ। अशफा की ऑफर पर तकवीर सदमे से चिकरा गई। वेट वेट, पहली बात, तुझे मनीरा आंटी ने छित्तर नहीं मारे क्या? और तू स्पैगेटी बना रही है? मतलब मैं शर्म खाकर मर वर तो नहीं गई ना अशबू, क्योंकि ये तो दुनियावी शय नहीं तेरा किचन में घुसना। ईमान के शशद्दर सवाल पर अशफा ने हंसते हुए स्पैगेटी बॉयल करने को पैन में उबलते पानी में डाली। यार मम्मी से प्रॉमिस किया है कि टेस्ट अच्छा दूंगी और दोबारा उनको ऐसे शर्मिंदा नहीं करूँगी। सोनू ने यह बात भैया और बाबा को ना बताने का वादा किया। रही बात स्पैगेटी की तो मम्मी से रेसिपी पूछी है, कल से चाय के अलावा चीज़ ऑमलेट बनाना भी सीख चुकी हूँ। ये सब मेरे हिटलर लाला का किया कराया है जिन्होंने कल मुझे ज़बरदस्ती किचन में घुसाया, पर मुझे फील हुआ ये तो मज़ेदार है। चल आजा मिलकर खाएंगे, भूल जा बेइज्जती को फ़िलहाल। अशफा की रोदात सुने ईमान को सच में हंसी आ गई। वाह जी वाह, चल ठीक है मैं आती हूँ। मेरी अम्मा जी तो जब तक मेरी रूह ना रोल लें चुप नहीं करने वाली, तंज के तीर बरसते रहेंगे। अभी तो जो रात पापा और आयस भैया से मेरी होनी इसका तो लेवल ही अलग होगा। लंच भी नहीं किया मैंने गुस्से से, सब मुझे नसीहतें कर रहे जैसे आइंस्टाइन की औलाद हूँ। खुद तो सब लाइक फाइक मुझे भी अपने जैसा समझते, इनको कौन बताए खानदान में एक नालायक भी होना लाजमी है, नज़र पट्टू। खैर मैं आती हूँ, मुझे तजस्सुस हो रहा है तेरे हाथ की स्पैगेटी खाने का। तकवीर ने रुहासे होते अपने गम फोले जबकि 2 मिनट में वो अशफा के घर जा
पहुंची। मुनीरानी को बस एक मस्कीन स्माइल देती मुंह छुपाए किचन में जा घुसी, जहां अशबा ने जिस तरह गन डाला था ईमान ने स्पेक्टी भी धोकर खाने तक का सोचा। बुरा मुंह खुद ही बना। बस 2 प्लेट जिसमें इसने सर्व कर रखी थी वो देखने लायक थी, वरना कहीं प्याज के छिलके, कहीं टमाटर से निकले बीजों का खलार, कहीं उबली नूडल गिरी हुई। छी, गंदी शेफ है तू अशबू। बंदा आसपास सफाई रखता, तेरे खाने कौन खाएगा। चल रूम में चलते हैं, यहाँ मुझे मज़ा नहीं आएगा। ईमान ने नज़ाकत से नाक बुन चढ़ाते माहौल को ममनू करार दिया, जिस पर दोनों मुस्कुराती अशबा के बेडरूम में गई। वहीं लगे मेज़ पर अशबा ने दोनों प्लेट्स रखी। चल टेस्ट करके बता, अशबा ने पुरजोशी के संग पूछा, जिस पर ईमान ने बुरे मुंह के संग पहली बाइट तो ली, मगर जायका इतना भी बुरा ना था, बस हल्के से नमक की कमी थी। वाह यार, ये तो बहुत मज़े की है। नमक कम है बस ज़रा। ईमान के कम्प्लीमेंट पर अशबा खिलखिलाती हंसी। सच्ची मैं नमक लाती हूँ, रोक। अशबा ने हंसते उठना चाहा, जिस पर तकवीर ने हाथ के इशारे से रोका। तू बैठ, थक गई होगी, मैं लाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक है फ्रिज में। ईमान खुद ही उठ खड़ी हुई, जिस पर अशबा ने सर हिलाया और ईमान नमक और कोल्ड ड्रिंक लेने किचन की तरफ बढ़ी, मगर न जाने क्या सूजी के किचन की तरफ जाने के बजाय साहिर के रूम के बाहर से गुजरते नज़र उसके कमरे में लगी उसकी तस्वीर पर गई तो दिल थम कर रह गया। बिना इरादा वो कमरे में दाखिल हुई। अजीब सी राहत और खुशी ने ईमान की आंखों का घेराव किया। ड्रेसिंग टेबल की हर नफासत से तरतीब दी गई चीज़ को मुस्कुरा कर देखते उसकी नज़र भटकी। उसके रूम की खुली खिड़की पर ढल के पर्दे हल्की हल्की आवाज़ से फड़फड़ा रहे थे। तभी तकवीर बेइरादा इनको बंद करने आगे बढ़ी थी कि साहिर के वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलने पर बुरी तरह उससे पटकी। ये टकराव इस बार तो किसी एक की भी कोताही का सबब न था, बल्कि किस्मत थी। ये लड़की पैदा ही या तो मुझसे टकराने हुई है या मुझे देखते ही गिर पड़ने के लिए। साहिर के लिए झटका नया कहाँ था। इस लड़की की मौजूदगी बिना किसी हादसे के कहाँ मुकम्मल हुआ करती थी। इस अचानक कुर्बत पर उसके एहसासात तेज़ी से बेदार हुए, जो गहरी निगाहों से उसका जायज़ा ले रहा था। ये तकवीर के ख्वाहिश और दिल मुस्तरब कर गया। मुकाबिल की नज़रों की तपिश और तवज्जो उसके लिए हमेशा से जानलेवा थी। और फिर ये खुशबू जिसके अंग अंग में उतरने के बाद वो इस साहिर के शहर से लाख निकलना चाहे, मगर नामुमकिन था। साहिर के कमरे में घर वाले भी नाक करके आते और एक ये मैडम थी धड़ल्ले से तशरीफ का टोकरा उठाए हर चीज़ का अब्बा जान की मलकियत समझ कर मुआयना कर रही थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ। नहायत दर्शती से इस्तफसार हुआ था, और जनाब की आंखें तो वैसे ही अगले का पोस्टमार्टम कर देती थी। साहिर से अपने कमरे में देखकर तप गया। वो मैम वो अब सामने वो साहिर और कोई माँ की लाली बिना हट के बोल पाए। ऐसे भी तो हालात न थे। रोब तो रोब तकवीर के ख्वासों पर तो उसकी क्लोन की मदहोश कुन खुशबू सवार हो चुकी थी, और इस बंदे के इतने करीब खड़े होना ख्वासों पर गहरी चोट थी। मैं क्या लगा रखी है बकरियों की तरह, कल बंदरी और आज बकरी। कोई इंसानी खूबी भी है तुम्हारे अंदर या नहीं। मेरे कमरे में मेरी ज़ाती ड्रेसिंग के पास खड़ी क्या कर रही हो तुम तकवीर ईमान। एक बार फिर सख्ती से सवाल दोहराया गया, और वो तो संजीदा इतना जानलेवा लगता था। अब तो गुस्से में रूह निकाल देते अंदाज में अचरती नज़रें डाले कूद रहा था। वो मैं नमक लेने आई थी। जब कुछ समझ ना आया तो मुकाबिल के तेवर देखकर मोहतरमा की ज़ुबान से जुमला बिल्कुल वैसे स्लिप हुआ जैसे खुश्क हथेली से रेत। एक पल तो वो भी पूरा घूम गया। ये लड़की उसके कमरे को ख्योड़ा की कान समझ रही थी। गोया साहिर जिब्रान के दिमाग की बत्ती गुल हुई। मानता हूँ मेरे टूथपेस्ट में नमक है, पर इतना भी नहीं कि बांटता फिरूँ। क्या तुम बचपन से ऐसी ही बोंगी हो। एकदम से साहिर के माथे की तनी रगें बहाल हुईं, और वो जो हालत फील करती मुंह बसोड़ चुकी थी, इससे पहले मजीद पेशी से फरार करती भेड़ा कर खुद ड्रेसिंग टेबल के नीचे मुड़े हुए कारपेट कॉर्नर का पैरा सा फंसा कि अगले ही पल यकीनन तकवीर फर्श पर गिरकर दांत तड़वा लेती। अगर पहाड़ जैसे जनाब का सीना और बाजू से बचाकर सदक़े जारिया का सबब न बनते। कुर्बान जाऊँ इस सदक़े पे। एक पल तो वो खुद इस नज़दीकी पर बौखला गया। तकवीर ने अपनी बदहवास सी हालत दुरुस्त की, फ़ौरन से बेशतर अपने पेट के गिर्द बदी साहिर की बाजू हटाई और पलके झपकाती घबराई। साहिर ने पहली बार गहराई से तकवीर के चेहरे पर अपने सबब उतरते रंग जांचे, जिनके लिए वो सालों से बदनाम था। मेरे सामने आते ही तुम्हारी बैटरी क्यों लो हो जाती है, नॉर्मल क्यों नहीं रहती। तो जो पहले ही अपना आप दामन बचाने में हलकान थी। इस सवाल पर तो तकवीर की पेशानी खालूद हुई, चेहरे का रंग उड़ा और दिल अजीब सा धड़कने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सड़े नसीब में सारा गिरना आपके इर्द गिर्द ही लिख दिया गया है। ये मत समझिएगा आपको देख कर गिरती है ईमान। हाँ, हटे साइड पर। अपनी पोजीशन बहाल किए, गहरा सांस सा खींचकर एतमाद वापस गेन किए। इससे पहले वो साहिर जिब्रान खान के साय तक से निकल जाती, उसकी बारी आवाज़ में कहे एक जुमले ने ईमान को अपनी जगह पत्थर कर दिया। अगर अपने नसीब को मज़ीद जलने से रोकना चाहती हो तो दोबारा इस दहलीज़ को पार मत करना तकवीर ईमान। फिर मत कहना वार्न नहीं किया था। अब जाओ यहाँ से। अपनी सादा मगर तहलका मचाती तंबीह किया। वो खुद भी अपने कमरे के अंदर ही बने लकड़ी के जीने चढ़ता ऊपर बने स्टडी की तरफ बढ़ गया, जबकि ईमान के चेहरे पर इज़्तिराब, बेचैनी और हल्की सी तकलीफ भी छोड़ गया। आज पहली बार सही पर ईमान को सच में इस चार दीवारी और यहाँ के इस पुरअसरार सर्द मकीन से खौफ महसूस हुआ। जारी है। कैसी लगी शॉकिंग केस। आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में 7th एपिसोड में। तो बताइएगा कैसी लगी आपको आज की थोड़ी रंगीन किस्म की किस्त। तो मिलते हैं फिर 7th एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना भी मत भूलिएगा।